why do good, talented people still struggle to find a job? Like, what would be your take on this, and what would be your suggestion to them? Yeah, that's a very good question, and that's very important so that we can give a message to our youth or the unemployed people. Basically, इसका ये होता है कि we are very digitalized right now. Hmm. Okay, आप देख Hello, everyone. Welcome back to another podcast series of the Hiring Room by Jobster X. So, the guest with me today, she is not someone who I was not warned about. Like, she's very energetic. I have been following her on LinkedIn, and she is a HR manager currently at a well-known firm. She has a lot of opinions, a lot of suggestions, and I'm sure she's not shy about sharing them out with us. Rabia, welcome to be here with us, and thank you so much for being part of this podcast. Assalamu alaikum. Thank you so much, Samir, for having me on your podcast. It's really honored to be here, and I'm really willing to share my experience with you. Perfect, perfect. Thank you so much, Rabia, for that. I'm sure the job seeker audience seeing this podcast would learn a lot today. Inshallah. So, Rabia, I would really like to know, like, you have been HR for a while now. What's the one thing about hiring which is still like keeping you attracted to HR? Okay. Okay. It's a start with the bad experiences actually. Mm-hmm. When we work with any organization, हमारा ये होता है कि यार एचआर ऐसे कर रहा है, एचआर ऐसे कर रहा है, ये पॉलिसी समझ नहीं आती, उनको देखो कैसे वो ऐसे बैठे हुए हैं, या फिर वो मेरी डिडक्शंस कैसे कर रहे हैं. ऑब्वियसली ये बैड परसेप्शन हम देखते हैं, एंड देन वी थॉट कि यार हम इस पोजीशन पे होते ना तो ऐसे नहीं करते. लेट मी ओपन माय फर्म, देन Mm-hmm. मैं बताऊंगी कि कैसे चलाते हैं इसे. I was a sales executive and I was working with a firm, a well-known UK based company. एंड मुझे एचआर से हिट लगा, एंड आई थॉट कि यार ये है, ऐसा है, डिडक्शन है, बगैर पॉलिसी बताए डिडक्शन कैसे कर ली, पॉलिसी बतानी चाहिए थी. देन आई थॉट मैं होंगी ना तो पहले पॉलिसी बताऊंगी, ओरिएंटेशन करूंगी. देन उसके बाद ये हुआ कि वो ये पॉलिसी ऐसे नहीं होती, तो आई थॉट कि आपने बताया ही नहीं मुझे पहले. तो Mm-hmm. चीजें चलती रही, आपके टाइम तो ये है, आपको तो इतना बैठना पड़ेगा, तो मैंने कहा ये टाइम ऐसा है, नहीं इतना है, तो मैंने कहा अपॉइंटमेंट में ऐसा लिखा हुआ नहीं है. सो देयर इज लॉट्स ऑफ पॉइंट व्हेन आई जस्ट पोक आउट कि यार ये चीजें ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था. नाउ जब मैं एचआर बनूंगी तो मैं बताऊंगी कि ये चीजें कैसे होती हैं, एंड दैट मोटिवेट्स मी. आई वॉज वर्किंग एज अ सेल्स पर्सन एंड वन ऑफ माई client has approached me. I Mm-hmm. have a very active and very charming personality, and I can say anything straightforwardly, but in a very well mannered and in a very professional way. नो भी कहना है तो उसको नो नहीं कहना, ये कह सकते हैं सॉरी आई couldn't डू दैट राइट नाउ, ऐसे इस तरीके से. तो देन दे प्रोवाइड मी द अपॉर्चुनिटी एंड आई बिकेम एन एचआर. और उन्होंने ही, मैंने आई थिंक 3.5 साल काम किया था उस फर्म के साथ, और मैंने बहुत कुछ सीखा. अगर मैं बताऊं तो बहुत अच्छे वेल नोन एमएनसी में मैनेजर एचआर थे, और फिर उन्होंने अपनी कंपनी फॉर्म की, और उसके बाद मैंने उनके साथ काम किया. सो मैंने वहां से किया कि आई नीड टू मेक अ पॉलिसी फर्स्ट. जो भी मेरी कंपनी में इंटर होगा मैं उसे बताऊंगी कि व्हाट आर रूल्स, ताकि वो अवेयर रहे. एंड इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड, तो आप उसको स्क्रीनिंग करते हुए ड्यूरिंग द इंटरव्यूज बताओ कि ये स्ट्रिक्टनेस भी है, ये चीज भी है, ये लाइट भी है, ये हार्ड भी है, यू कैन नॉट फेस दिस काइंड ऑफ, हमारे बॉस ऐसे हैं, हमारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं, थोड़ा बहुत ऐसा भी चलता है. यू हैव टू inform each and everything. If they want to work with you, it's okay. If they don't want, it's really good. Mm-hmm. Transparency, I do agree 100%, and it's good that you accepted this change, like to bring an impact in the industry. So that's one of the amazing moves that you did. And I really want to ask you, how was the transition from a sales role to a HR role? Okay, I was a good salesperson.
I last target I have closed is 1 million. That was on the call. Amazing. I was in the call in the Karachi, and the sale has been done in Hyderabad. So I was the backbone in sales department. Amazing. Yeah, but once when I received that chance कि यार HR में आप आ जाओ, और आपके स्किल सेट इस तरीके के हैं, तो मैं गई. दैट वाज अ रिस्क, क्योंकि मैं बहुत अच्छी सैलरी और कमीशन पे थी, और मैं एक लोअर सैलरी पे गई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्पार्क है, यू कैन डू दैट. जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया तो मुझे एम्प्लॉयज़ की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आना शुरू हुआ. दैट वो कहते थे, मैम आपका टाइम मिल जाएगा, मैम मुझे आपसे बात करनी, मैम मेरी टाइमिंग में ये है, मेरी परफॉर्मेंस में मेरे मैनेजर ने ये किया. मुझे समझ नहीं आता था मैं उसे कैसे रिएक्ट करूं, बट मैं सुनती जरूर थी. देन दिस हिट्स मी कि यार HR में लोग ईमेल ईमेल खेलते हैं, सुनता कोई नहीं है. एंड द पीपल, वो मेरे लिए स्टिकी नोट्स लेकर आते थे, द बेस्ट HR. जब आप 10-15 लोगों की कंपनी में काम करते हो, Yeah. सम टाइम आई रिसीव द चॉकलेट्स. मेरे हेड कहते थे व्हेन आई वाज मेकिंग पेरोल कि राबिया, तुम्हारी 1 रुपए की भी गलती होगी, तुम नेक्स्ट मंथ में वो एडजस्ट कर देती हो, ये नहीं देखती हो कि ये इग्नोर करना है. यू हैव यू रियली वांट टू एडजस्ट कि यार ये कंपनी का पैसा है, हमें ऐसे करना चाहिए. रिसोर्सेज कभी कभार होती हैं कि हमें कम पैसों में चाहिए होती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि तुम ज्यादा पैसों के लिए लड़ती हो कि नहीं, दे डिजर्व दिस. तो वो इनिशिएटिव लेना, वो चीजें करना, जब मुझे मेरे जो CEO और जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो हमें बहुत इनकरेज भी कर रहे होते हैं, गुड और बैड नोट्स पे वो हमें बता रहे होते हैं, तो ये हमें बहुत इनकरेज करता है कि यार आपको इसी पोजीशन पे रहना है और इस पे ग्रो करना है. दैट्स व्हाई आई फील सो गुड कि अच्छा, वो मैं सिर्फ सेल्स 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 नहीं, आई वर्क ऑन द ह्यूमन बीइंग पर्सनालिटी. उनकी लाइफ साइकिल पे HR पूरे ह्यूमन लाइफ साइकिल पे A to Z काम कर रहा होता है. उसे खुद आइडिया नहीं होता है. उसकी ऑन बोर्डिंग और उसकी ऑफ बोर्डिंग से लेकर उसके बीच में जो भी लाइफ साइकिल है, उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे प्रॉपर HR एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे रहा होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड पर्सन. जो भी HR में है, दे आर ब्लेस्ड, आई गेस. That's wonderful. And based on your answer, what I really do understand is that you were always blessed having a good leadership. And Yes. maybe that's why that transformed you to making positive steps and making a positive change. So that's amazing. But I really want to understand one more thing over here. Yes, please. The biggest mistake you made earlier in your career that you would never want to do again. Okay. Yes, I have joined HR in a very early age. बहुत छोटी सी थी मैं, 8 साल पहले की अगर बात बोले तो. मतलब हमें था कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सैलरी अच्छी है, लेट्स स्विच. ये मैंने 1-2 मिस्टेक्स की. हमारे पेरेंट्स है ना, वो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं. वो तुम्हें इतना काम करा रहा है, तुम छोड़ दो कंपनी. I see. अरे कैसा बॉस है, ये सुनता नहीं है, छोड़ दो कंपनी. दे हैव दैट वन सॉल्यूशन ऑल द टाइम. छोड़ दो. तो लेट गई, अरे किसी लड़के को इतने देर बुलाते हैं, छोड़ दो कंपनी. आई वाज लाइक मामाज चाइल्ड ना. Yeah. अम्मी ने जो बोला, ओके. So you left a company. That was Yes. one of your biggest mistake. Oh, Yes. okay. 3 कंपनी आई लेफ्ट, विच इज, मैं नाम नहीं लूंगी, Yeah. बट मैं आज भी उनका नाम मुझे याद है, और उनके साथ मैं कनेक्टेड भी हूँ. बट मैंने उनको बोला था, मेरी अम्मी ने कहा था छोड़ दो. मैंने कहा PR क्यों खराब करूं. बट मुझे उस वक्त था कि यार मैं क्लियर बोलूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी अम्मी ने बोला था. सो Why दे should सेड I ओके ruin चलो. my relationship? दे आर वेरी नाइस पीपल. खाना खा रहे हैं, कंपनी में कोई फ्रूट्स आ रहे हैं, तो दे डिस्ट्रीब्यूट इन द एम्प्लॉयज. लाइट कभी लोड शेडिंग ऐसी हो गई और जनरेटर का कोई इशू हो गया, दे ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक और सबको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया. देयर वाज अ Yeah. फैमिली काइंड ऑफ टाइम वी वर स्पेंडिंग.
और अचानक से ऐसा हुआ कि मेरी सैलरी काट दी और मुझे बताया नहीं, तो मैंने अम्मी को बताया that उन्होंने कहा, छोड़ दो जो, तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम छोड़ दो। और वो चीज़ हुई, एंड दैट्स रियली फाइन। आई थिंक आपके आपका रिस्क एक बना हुआ होता Yeah, है, तो yeah. आप इतना नहीं टेंशन लेते हो। लेकिन मैंने बोला कि यार उस वक्त बड़ी मिस्टेक्स होती थी कि कहने पे नहीं छोड़ना चाहिए। आप Yes. 3 महीने में 1 मंथ में कंपनी छोड़ सकते हो, बट देयर शुड बी अ वैलिड रीजन, True. अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। That's true. I mean, I agree on that. Perfect. Okay. Now let's do some real talking around hiring now. So Yes. honestly, are companies actually hiring the best people or just the most familiar ones? What do you think? There's a mixed answer, I would say All right. कि अगर जहाँ पर बहुत क्लोजली मैनेजमेंट आपके रिक्रूटमेंट को देख रही होती है और आपके हायरिंग प्रोसेस को देख रही होती है, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि दे यूजुअली go with the merit and the qualification and the experiences, और रियलिस्टिक चीज़ों पे बात कभी कभार मैनेजमेंट नहीं करती, ये प्रॉब्लम आ जाती है। Hmm. ठीक है, उनको यंग एनर्जेटिक चाहिए, बट उनको एक्सपीरियंस 10 years का चाहिए। सही है, मैनेजमेंट ने कह दिया, बट व्हेन वी सेड वी आर ब्लेस्ड, इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट ने तो कुछ भी कह दिया। नाउ इट्स योर टर्न, रिक्रूटर, टैलेंट एक्विजिशन और एचआर पर्सन हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करो कि ये रियलिस्टिक चीज़ें नहीं है। मैं ये करूंगी तो इसका ये होगा, इस तरीके से हायर करूंगी तो आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, Hmm. तो इसमें ना प्रॉब्लम दो साइड पे आती है। एक तो रिक्रूटमेंट में होता है, जो मैनेजमेंट ने बोला एग्जैक्टली डॉट वही हायर करना है, और कभी कभार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट चाह रही होती है कि हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, बट रिक्रूटर सब्जेक्ट को देखकर हायरिंग शुरू कर देता है। Yes. दे वांट प्रॉपर कंसंट्रेशन, रीडिंग, और अगर रीडिंग से आपका दिल नहीं हो रहा है मुतमईन, या यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, यू हैव टू मेक अ स्क्रीनिंग कॉल राइट अवे, just Hmm. for 2 to 3 minutes. But don't waste and lose that resume जो आपकी कंपनी में एक बहुत अच्छी ग्रोथ का जरिया बन सकता हो। अब यहाँ पर हमारे रिक्रूटर्स या हम जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, इंक्लूडिंग मी, सम टाइम ऐसा था कि यार टाइम नहीं है, बस देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है ना, बस ये शॉर्टलिस्ट करो, खत्म Hmm. हो गई Hmm. बात। Hmm. Hmm. कौन कॉल करेगा, कौन उससे बातें पूछेगा, कौन इंट्रोड्यूस कराएगा। और सम टाइम देयर इज सो मैनी एचआर और टैलेंट एक्विजिशन आर, दे आर सो इंट्रोवर्ट, उनको कॉल नहीं की जाती, Hmm. तो वो बस ईमेल कर देते हैं, स्क्रीनिंग कर दी और उनको बस एड्रेस बता देंगे, बस खत्म। सो ये कॉन्फ्लिक्ट आता है कि एक तो होता है कि मेरिट बेस पे एक अच्छी हायरिंग हो जाती है जो एचआर चाह रहा होता है, भले वो मैनेजमेंट की तरफ से होना, उसे कंपनी ग्रोथ का पता होता है। Hmm. और दूसरा, मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं, एचआर भी उससे ओके कर रहे हैं, अब वो 1 महीने से एक रिसोर्स देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो मार्केट में नहीं मिल रहा, वो Hmm. नहीं मिलेगा, वो रियलिस्टिक चीजें है नहीं, तो वो रिसोर्स आपको कभी नहीं मिलेगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, और ये एक मिक्स आंसर ये है कि रियलिस्टिक वे में आप देखो तो रेज्यूमे और कैंडिडेट मिल जाएंगे, लेकिन Hmm. आप नहीं रियलिस्टिक वे में नहीं देखोगे ना, तो आपको 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स रिक्वायर्ड है कि ये पोजीशन क्लोज नहीं हो रही। Hmm. I think while job seekers seeing this podcast, I'm sure they might also learn that it's our table has also issues. So we're just speaking it out loud on this podcast, but Yes, we also face a yes, lot of issues on our table as well. And yes. Rabia, I do want to ask you, like, you have been in talent acquisition for years now. What do you think? Why do good, talented people still struggle to find a job? Like, what would be your like take on this, and what would be your suggestion to them? Okay. That's a very good question, and that's very important, so that we can give a message to our youth or the unemployed people.
बेसिकली इसका ये होता है कि वी आर वेरी डिजिटलाइज राइट नाउ. Hmm. ठीक है, आप देखें किसी भी नॉर्मल पर्सन की इंस्टाग्राम को जाकर, फेसबुक को जाकर, स्नैपचैट को जाकर, डिफरेंट सोशल मीडियाज को आप देखेंगे, उन्होंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, व्लॉगर, ब्लॉगर, कंटेंट, फैशन डिजाइनर एंड ऑल. Hmm. सही है. और उसके बाद पिक्चर्स अपडेट की होंगी इस एंगल से उस एंगल से, दे आर मेंटेनिंग देयर प्रोफाइल. द सेम गोज विद आवर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. Hmm. हमारा डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह हम प्रोफेशनल अपनी एक्टिविटीज़ लिंक्डइन पर रखें, ठीक है, Hmm. और हम उसी चीज़ को अपने रेज्यूमे पर भी ऐड करें. आपको मैं अभी अपने रेज्यूमे के एक फोल्डर ओपन करके दिखा दूंगी. मैं नाम नहीं ले रही, बट वो अभी इंटरव्यू के लिए कल आएंगी वो हमारे पास, सॉरी मंडे को. Hmm. वो बहुत अच्छी रिसोर्स है, बट मैंने उनकी सीवी डाउनलोड की है. सो देयर इज अ वर्ड, CV. Yeah. Yeah. Hmm. How you guys are representing yourself via resume, via email. There is no email. There's just resume attached with the name of CV. Yeah. Seen those. How we can take you seriously, I've seen those. Yeah. I've seen right? those. Even in my experience, I had a profile, amazing profile, experienced person, well-known university, amazing. Like, as a recruiter, you just view the profile and you're like, this is a good fit. And I'm finding his number is nowhere. Really, number was nowhere on the resume. I had to send it to one of my colleagues that maybe I'm mislooking. Can you please find Please the check it number? out. No. And then I had to email, and I never heard back on email as well. So Oh my my god. my only point was over there as well. Like, it's fine. He lost the opportunity at my place, but at least I could get him corrected for the future. I just hope Yes. he was able to get his, like, this is back 5 6 years ago. Resume. Yes. Yeah. Oh my god. So I do agree. Yeah, we do see So these mistakes. Yeah. update your LinkedIn. First Hmm. of all, this is the digital world now. Yeah. ठीक है, पहले मैं LinkedIn देखूंगी, उसके बाद I'll go to the resume. Yeah. इससे क्या होता है, इससे आपको वेरिफिकेशन मिलती है Hmm. एम्प्लॉय एग्जिस्टेंस की, उसके प्रोफेशनल करियर की, उसके प्रोफेशनल कनेक्शन की, उसके रिकमेंडेशन की. देयर इज लॉट्स ऑफ रिव्यू. देखते हो ना, अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेनी है, आप गूगल पे रिव्यू चेक करते हो, फेसबुक पे, मेटा पे आप रिव्यूज चेक करते हो. Hmm. दैट्स द सेम गोज विद द लिंक्डइन. मेरी कोई प्रोफाइल पे जाएगा, वो देखेगा किसने इनको रिकमेंडेशन दिखी हुई, इन्होंने किस टाइप की पोस्ट की हुई, इन्होंने सिर्फ अपना फेस लगा के यूं बैठकर पोस्ट किया हुआ, ये इन्होंने कुछ काम की बात भी बोली है, इनकी अप्रोच कैसी है. वी शुड हैव टू गिव. अच्छा ठीक है, सारी चीजें कोलीग्स के साथ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो इससे आपकी कंपनी प्रेजेंस, आपको पता चलता है कि किस कंपनी में काम कर रहा है, जिसकी अपब्रिंगिंग, कंपनी में भी अपब्रिंगिंग आपकी हो रही होती है, True. आपको True. नहीं True. पता True. होता है. Yeah. ठीक है, True. तो वो कंपनी आपको किस तरीके से प्रोफेशनली ग्रोथ दे रही है, ये सब मैटर करता है. वो किस कंपनी से मेरे पास आ रहा है वो कैंडिडेट, तो वो हमें देखना होता है. सो इट्स रियली important to be present and active on the LinkedIn. ये अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो उनका ना लिंक्डइन अपडेट होता है ना उनके रेज्यूमे है, तो उसमें ज़रूरी नहीं आपने पिक्चर लगानी है या नहीं. ग्लोबली देखें तो दे वांट अ पिक्चर, बट अभी पाकिस्तान में भी ऐसा है कि वो पिक्चर से इतना परसेप्शन अपना बना लेते हैं कि ये ओल्ड है, ये यंग है, ये जेंजी है, तो ये कैसे काम करेगा. तो हमारा माइंडसेट ऐसे, तो आप पिक्चर ना लगाओ, बट यू हैव टू एक्सप्लेन वेरी वेल एंड टू बी पॉइंट. Yeah, that's true. टू द पॉइंट आपने करना है, ऐसा कि आपने नेम, अपने डिटेल्स, वेयर यू आर लोकेटेड, अपना एड्रेस, ईमेल, लिंक्डइन प्रोफाइल आपने भेज दी. उसके बाद आपकी शॉर्ट समरी है, वरना आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दो. एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, स्किल्स हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. अगर किसी ने आपको रिकमेंड किया हुआ है, हाँ आप बताओ कि दिस आर द CEO एंड द डायरेक्टर, दे आर रिकमेंडिंग मी, या HR है, आप ये चीजें बताओ.
आप वहां पर फादर नेम लिख रहे हो, अपनी CNIC लिख रहे हो, पासपोर्ट नंबर लिख रहे हो, Complete होम टाउन address. का एड्रेस दे रहे हो, I mean, we फिर are करंट never gonna एड्रेस. post you. Yeah, we're never gonna post you for an interview invite. यस, यस, आप बता दो ये लोकेशन है, उसके बाद आपका हमारा सबसे बड़ा फोकस होता है कंपनी, जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, कंपनी, True. उस पे आपने फोकस करना है. आपने सर्टिफिकेशन किया, आपने रिसेंट सर्टिफिकेशन की, आपको करनी चाहिए. जिस तरह हमारी 3 मंथ्स में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, HR स्ट्रैटेजी, रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर चेंजिंग randomly in the growing era actually, yeah, if we can say in the automation world. So it's very important. अगर आप सर्टिफिकेशन करते हो, नहीं करते हो, तो आप अपनी चीज़ों में कुछ ऐसा रखो कि मैंने वर्कशॉप कर ली, फ्री वर्कशॉप कोई उठा लो, कहीं सेमिनार हो रहा है, आज टू योर रेलेवेंस, लिंक्डइन पे कनेक्ट रहो कि यार अगर कोई ऐसे वर्कशॉप हो ना फ्री, प्लीज मुझे बताना. आई थिंक ये आप कनेक्ट रहते हो, आप अपग्रेडेड रहते हो अपने करंट जो भी चीज़ें चल रही होती हैं. तो ये रेज्यूमे अपडेट ना करना, उसमें इररेलेवेंट डिटेल्स डालना जो रिक्रूटर का कंसर्न नहीं है. आपने टाइटल डालना है, और टाइटल अगर आप चाहो तो मार्केट में 2-3 किस्म के टाइटल चल रहे होते हैं एक ही पोजीशन के. आप जॉब पोस्ट देखो. मेरे पास रेज्यूमे है, मैंने मार्केटिंग एसोसिएट की जॉब पोस्ट की है, और मुझे उसमें मार्केटिंग मैनेजर कंटिन्यूसली अप्लाई किए जा रहे हैं. उसमें मैंने लिखा भी है 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, और असिस्ट टू डायरेक्टर और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. नाउ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आर सेंडिंग मी द रेज्यूमे. Yeah, I get that. Yeah. You guys are very talented, you guys have that experience, but relevant 10 जॉब में अप्लाई करने की जगह 3 रेलिवेंट जॉब पे आप अप्लाई करें. सोच समझ के पढ़कर रेज्यूमे को प्रॉपर अपडेट करके अपनी रेज्यूमे हर जॉब के लिए अपडेट करें. क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आप इस जगह पर टाइम स्पेंड नहीं करते. आप जब टाइम स्पेंड नहीं करोगे, हाउ यू विल गेट अ गुड जॉब एज पर योर रिक्वायरमेंट. एवरीथिंग वॉन्ट्स अ टाइम एंड फोकस. आप एक सैलरी, एक इनकम लेते हो, अपने घर को चलाते हो, अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को ग्रूम करते हो, ठीक है, अर्निंग कर रहे हो, बट आप उस पर 5 मिनट 10 मिनट फोकस के नहीं कर रहे हो. How it's possible Yeah. to get a great or good job, or the job, your desired job actually. I agree. Yeah. That's all. No, thank you so That's all. much. Thank you so much for a detailed answer on this question, because it's an important one. But It's important. yeah, it's really important. My next question to you, and I really need you to think carefully before answering this question, because either job seekers will be behind you, or employer or HR professionals would be behind you. Who's Okay. more responsible for hiring mess? The employers or the candidates? Who is more important for the Who's job? no. Who's more responsible for the hiring mess? Is it the employers or is it the candidates? Think carefully. I think बड़ा मैं ये बात बोलूंगी, आई डोंट नो मेरी PR क्या हो जाएगी. लोग मुझे क्या बोलेंगे. बट आई गेस मेस्ट होता है कैंडिडेट की साइड से ज़्यादा. Okay, okay. कंपनीज पोस्ट कर देती हैं, और वो बता देती हैं ये टाइमिंग है, ये सैलरी है, ये चलो सैलरी कंपेटिटिव है, लोकेशन ये है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है. True. कंपनी को पे करना होता है, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. वो मार्केटिंग की जॉब लगाकर अगर सेल्स करें, ये कभी कभार होता है, लेकिन 100% नहीं होता. लेकिन the candidate have 100 and 200% right to accept or reject that post, that requirement. True. तो ये मैस्ट कैंडिडेट करते हैं. When you say mess, it means that they still apply for the role without thinking. Like, they do see it's a junior role, they do see that it's not a fit for them, but still they wanna just throw their resume on that role. Yes,
यस, वो कहते हैं देख लेंगे ना, क्या पता इनकी कंपनी में ये होगा तो वो कर लेंगे। आई नो अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़रूरतें होती हैं ज़िंदगी में, बहुत चीज़ें होती हैं, इंसान हर स्टेट, किस स्टेट पे उस वक्त है ना अप्लाई करते हुए, एक रिक्रूटर या एक कंपनी उस वक्त इमेजिन नहीं करती इस चीज़ को। हम्म। ठीक है, आई नो वो बहुत डिस्परेट होकर जॉब पर अप्लाई करते हैं, बट देखिए जो रिक्वायरमेंट है ना कंपनी, उसके अलावा बहुत मुश्किल है कोई रिक्रूटर एक्स्ट्रा बोले कि यार तुम्हारी मिलती जुलती है, चलो मैं तुम्हारा भी इंटरव्यू करवा देता हूँ या हम्म। करवा देती हूँ। ट्रू। ये मैं आज भी कर रही होती हूँ। बट आई गेट दैट, या। ये हर कोई नहीं करता, ये हर कोई नहीं करता, हम्म। तो आई मीन ये स्पेशली हमारे राबिया कैंडिडेट जो की तरफ से मैस्ड होता है। स्पेशली राबिया जो बल्क हायरिंग कर रहे होते हैं, इट्स डिफिकल्ट फॉर देम, राइट? लाइक they वेरी have a डिफिकल्ट। target after a target, they have to close roles, right? And we यस have been यस। in that pressure of closing roles as well, right? So उसमें इतना टाइम नहीं होता है कि memorize resume and then fit that, like यस map that to the other role. So like this is me as a employer giving this feedback, like a HR professional. Like we don't have that much time, like honestly, like यस। it's not necessary that for every role we would be able to map your profile for another role internally. Yes. Mhm. We will do So on the present thing. Okay, we have to close this. Aside this resume. Okay, we'll work on it. Clear. क्योंकि हमारे टारगेट्स होते हैं. We are also doing a job. ठीक है, या जॉब नहीं कर रहे तो अगर हमारा बिजनेस भी है तो हमें एक क्लाइंट ने टारगेट दिया हुआ है, वी हैव टू yeah, कंप्लीट इट ऑन द that's true. टाइम। अगर ये नहीं होता तो हमें बहुत लॉस होगा। तो हम ये सोचते हैं कि यार एटलीस्ट आप उधर फोकस करो, ये अगर हमें टाइम होता है तो हम डेफिनेटली देखते हैं, बट अदरवाइज वी डेफिनेटली वी हैव टू रिजेक्ट इट, वी हैव टू कि भाई इसको देखना ही नहीं है, इसको साइड करो। ये हमारी मजबूरी है या जो भी है, कैंडिडेट इस चीज़ को लिटरली आज भी नहीं समझते। आप लिंक्डइन पर जाएं और आप पोस्ट देखें कि मैंने इनको बोला था और इन्होंने मुझे किया नहीं। लिटरली हमारे पास इतना प्रेशर होता है कि हम खुद भी नहीं कंट्रोल कर पाते इस चीज़ को। I get that. I do get that. Rabia, based on your experience, I mean, we would first like to hear that what's the most like rememberable interview that you all had with a candidate? Anything that you could recall, any interview that happened and you still recall that? ओके, बहुत सारे हैं, बहुत Really? सारे हैं इसमें। लास्ट वीक आई गेस ईद से पहले भी Hmm. बड़ा अजीब सा केस हुआ, दैट मैं बस रीसेंट बता देती हूँ, आई Sure, थिंक sure. दे विल रिलेट। Sure. I'm sure this won't be unprofessional. I just conduct the screening interview. Being in HR, ke how is the body language, how is the person, because that's a senior position, Hmm. and I know he will directly report to the director or the head of the Yeah. operations. So I go and I went and I said, "How are you?" and all. Okay, उसने yes, yes, yes. Okay, and I said the reporting head, okay, now your turn. I have another meeting. I'm sorry I couldn't join you. और जब मैंने उसका रिव्यू पूछा कि आप मुझे बता दें एंड ऑफ द डे, तो मैंने तो बिल्कुल अच्छा रिएक्ट किया। बीइंग अ Hmm. गर्ल, मुझे नहीं पता था कि ही वाज लाइक रिस्पेक्टिंग द Yeah. फीमेल पर्सन। बट उन्होंने कहा, राबिया, आई वाज टेकिंग अ इंटरव्यू एंड द कैंडिडेट टर्न his arms और Yeah. go back, अंगड़ाई लेते हुए वो पीछे चला गया, और वो इतना पीछे चला गया कि उसकी चेयर बिल्कुल आवाज आई है टक करके कि लाइक इट्स अबाउट टू Break. Oh my god. आई मीन 2 to 3 लाख प्रोफाइल और वो पोजीशन थी। एंड ही सेड ही वाज सो कैजुअल। इसने मुझे पूरे इंटरव्यू बोला, यार तुम सुनो यार, यार तुम ये सुनो यार। Even though we have That's mentioned one that of our you have experience. to you have to That's one. wear a dress code properly, Yeah, yeah, of be course. nice to everyone and all this we have mentioned on every email, for the interview when we were inviting for the interview, we mentioned that clause कि आपने ड्रेस कोड ऐसे करना है और ऐसे आना है, और
that person will be taking your interview and he knows. और उन्होंने कहा कि यार ऐसा यार वैसा यार मैं तुम्हें बताता हूँ. उसने 3-4 बार टेप रिकॉर्ड. That's one of the experience. That's the recent issue. I think incident. He and he was so good person. और उसने कहा राबिया मैं तो डर गया था, मैं कैसे इसे हैंडल कर लूँगा डिपार्टमेंट में. इज अ वेरी नाइस गाय, पर उसका Yeah. बिहेवियर ना मैं नहीं कर पा रहा हूँ. वो बहुत टैलेंटेड लड़का है. Yeah. सो हमारी इंडस्ट्री में ये भी प्रॉब्लम है. देखिए ये बहुत अच्छा रूट कनेक्ट किया, मतलब एक कनेक्शन है ये कि आप सोचते हो आपको बहुत अच्छा काम आता है तो आपका बैड बिहेवियर भी मैं कंपनी बेयर कर रही होती है. कंपनी तब बेयर करती है जब उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता. लेकिन जैसे कंपनी को ऑप्शन मिलता है ना, और कितनी कंपनी लॉस भी करती है, कहती है नहीं वी कैन नॉट बेयर दिस बिहेवियर. On this, yeah. यस, वो बेसिकली वो कहती हैं सही है थोड़ा सा लॉस होगा कुछ दिनों का, विल बेयर इट बट वी कैन नॉट. तो ये तो मैं बोलूंगी कि प्लीज इतना कैजुअल नहीं उठना चाहिए. This was over casual. I mean, Oh my what about God. experience, right? That's Like, I cannot even share one of mine as well because this was extreme. yes. Yes, this is true. So, Rabia, based on your years of experience, what's Yes. that one feedback you would really like to communicate through this podcast to the upcoming generation, like the freshly graduate students? Okay, you call the Gen Z, Gen Alpha. Yeah, yeah. Okay, I guess. Okay, generation change. Everything is going change day by day. I think not just the generation actually, Hmm. but I think sort of kindness for everyone and respect for everyone. ये थोड़ा सा ना मिस आउट हो रहा है. स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, अपनी बात को रखना, क्वेश्चंस करना, इट्स अ गुड थिंग इन द न्यू जनरेशंस. Hmm. और अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी चलना कि भाई ये टाइम है इस पे करना है, ठीक है, बट हर चीज आराम से और बहुत रिस्पेक्टफुली भी हो सकती है. That's true. Yeah. ये चीजें ना थोड़ी हम क्या मतलब वी डोंट वांट दैट. नो 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 नो, हाउ ही कैन डू दैट. उन्होंने कैसे बोल दिया ये चीज, ये नहीं नहीं ये पॉलिसी में ऐसा नहीं है, मैं इनसे बात करूंगी and I'll give the नहीं. ये होता है कि आप बिल्कुल पेशेंटली और रिस्पेक्टफुली चीज़ों को इनहेल करो. यू गाइज आर द यूथ एंड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड एक्चुअली. ठीक है, सिर्फ हमारे लोग पाकिस्तान तक नहीं, वो ग्लोबली ग्रो कर रहे हैं. तो हम ना अपने कल्चर और अपने जो एशियन एक जो होता है ना ऑरा, वो यही तो है, अ रिस्पेक्ट, काइंडनेस. और हमारा जो हमारा रिलीजियस भी हमें यही कहता है, एवरी रिलीजियस डू दैट, रिस्पेक्टफुल काइंडनेस. ठीक है, तो वो नहीं बोलो. जनरेशन चेंज हो रही है बट रिस्पेक्ट का क्राइटेरिया आपको रखना है. आप हर चीज में नो बोल सकते हो, यस बोल सकते हो, आप डिनाई कर सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो, बट देयर शुड बी अ रिस्पेक्ट criteria you have to follow in everywhere, professionally, personally. You guys have to maintain a respect. ये नहीं कि मुझे तो पता है अब वो बूढ़े हैं छोटे तो क्या हुआ, मैं तो ये करूंगा, ये तो है दिस का या करूंगी, ये नहीं होना चाहिए. मैंने बहुत चीजें ऐसी देखी, दे आर वेरी नाइस बट वो इतने ब्लंट हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि कितने लोगों का आप दिल दिखा देते हो जिनकी गलतियां नहीं होती हैं, चीजें नहीं होती हैं. इवन तो ऑफिस एनवायरनमेंट में आपने ब्लंटली होके बोल दिया, आपने लगा मैं तो यही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. Yeah. स्ट्रेट फॉरवर्ड और बदतमीजी में बहुत फर्क होता है. तो आई थिंक दे शुड मेंटेन दिस. देखिए वो बहुत अक्लमंद है, हमसे बहुत स्मार्ट वर्क करना जानते हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं. CGPA आप देख लें, हम तो भागते थे इन सब चीज़ों से. ठीक है, और हमने तो जो भी रैंक लेकर आए, पिटाई हुई है हमारी, प्रॉपर डांट हुई है रात को अब्बू से और अम्मी से, तो जाके इनको ये भी नहीं मिला है, दे आर सॉफ्ट पेरेंटिंग हो रही है इनकी. इसमें आई थिंक जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनको देखकर थोड़ा सा आप लर्न करो. और जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल,
उनको ना रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए जो एक्सपीरियंस होते हैं। मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई मतलब मैटर नहीं हुआ Incident. अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ। Hmm. एंड देन हुआ भी ना तो आई आई गेस मैं काम डाउन हो जाती हूँ और सेकंड डे उनको समझा दूंगी। तो लेकिन आई थिंक ये अगर मेरा मैसेज जा रहा है उनको, तो Hmm. मैं ये बोलूँगी यू गाइस आर सो इंटेलिजेंट, सो स्मार्ट। रील्स, मीम्स आप लोगों की देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ व्हाट्स गोइंग ऑन। और काम करने में इतना अच्छा स्मार्ट वर्क इनका होता है, लैपटॉप्स, चीज़ें देखना, टेक्नोलॉजी में जाना, ऑटोमेशन, दे गाइस आर डूइंग वेल। बट कहीं पर अपनी ह्यूमैनिटी को ना बिल्कुल आप बरकरार रखो, बिल्कुल सोशल और इतने ज़्यादा ऑटोमेशन की तरफ ना जाओ कि आप जो ह्यूमैनिटी है, कल्चर है, रिलीजियसली आपको जो बिहेव करना है, एक इखलाक का जो है ना, एक क्या कह सकते हैं, वो अपना इखलाक तो Yeah. मेंटेन रखो, I mean, don't ज़रूरी compromise है। on that personality. हाँ, इट्स वेरी नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस, Perfect. आई होप सो दे अंडरस्टैंड दिस। So, Ravia, before we end this podcast, I have one last question for you today. यस, यस। One thing you would change about hiring, what would be that? One thing that changed about the hiring. I guess I'm very comfortable with the Zoom interviews or the online interviews में सॉरी प्लेटफॉर्म का नाम ले रही हूँ। Yeah. ऑनलाइन इंटरव्यूज पे हम फोकस कर सकते हैं। It's before selecting any candidate or call them for the final interview, I think keep it online or virtual, ठीक है। बट ये चीज़ें बहुत कम है, तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को चेंज कर रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ जो काफ़ी कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है, इफ यू आर कॉलिंग टू एनी कैंडिडेट, Hmm. ठीक है, यू हैव टू पे अ फ्यूल टू देम। Yeah, of course, of course, of course. Like, If especially they are doing. unemployed, yes, if especially if they are unemployed, ask them if they are not doing any job, pay them। या फिर आप ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यू कंडक्ट करो। इट्स रियली ओके इफ द पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपको बॉडी लैंग्वेज पता चल रही है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन ऑब्जर्व। तो आई गेस it's not a big deal to call to everyone in front of you. It's mandatory, no, if you are not going to hire them. Yeah, I mean, I just put one rule on it that it would be an open camera one. So I think being HR, it's more than enough for us to observe the body language and the way Definitely, job seekers responding to the questions. definitely, yes, I can, shut down that kind of thing कि भाई आपको आना है ऑफिस में और अपना फेस दिखाना है और ऐसे बोलना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गिव देम एन इजी वे ताकि वो भागे नहीं इंटरव्यू से। देखिए मैंने यही फेस किया है, आप 10 इंटरव्यूज करवाओ तो 3 लोग आएंगे, वो क्यों? आप उनको इजी एक्सेस दो दैट दे विलिंग टू गिव यू द इंटरव्यू, और इससे आपकी ब्रांडिंग होती है। आपने 10 लोगों को कॉल किया, उनको आपकी कंपनी का नेम पता चला है, उनको आपके बारे में पता चला है, ये एक ब्रांडिंग हो रही है। आप बुलाने की वजह से धूप गर्मी, देखिए हाँ, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, हम कहीं पे भी रहें, बट कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि उनके लिए इजी नहीं होता मैनेज करना। तो आई गेस इट्स रियली नीड टू चेंज एंड आई एम डूइंग इट कि यार जूम पे या हम वर्चुअली कोई इंटरव्यू कंडक्ट करवाएं ऑनलाइन, ताकि कैंडिडेट मतलब टाइमली, या वी कैन हायर टाइमली ना। इट्स अगर कैंडिडेट 10 में से 3 आ रहे हैं, उस 3 में से कोई शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। बट इफ दे ऑल 10 आर अवेलेबल टू जॉइन ऑनलाइन एंड यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम देम, तो यार देयर इज नो बिग डील, आई थिंक That's इट्स रियली इजी। That's true, and it's a wonderful initiative. Like amazing, like it's supporting the job seekers as well, and it's also tells about the company beforehand as well. Like it's a good initiative. So amazing, keep up that work. Like, and once again, with that said, Rabia, thank you so much for your time today. It was really nice having you. I'm sure the blunt feedback that you have shared over here would really help the job seekers, and I'm sure that they will use it in their advantage. So once again, Yeah. thank you so much for your time today. Thank you so much for having me. It's really wonderful talking with you.
आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन जहाँ पर बहुत रियलिस्टिक टॉपिक पर बात हुई है. With No, transparency. yes, no scripted, nothing else. That we are sharing our, experience, reality or real time experiences. So thank you so much for giving me this opportunity. Really Not happy. at all. Bringing in transparency is one of our mottos, and we focus on that. I mean, that's why just your intro was like one of the things that I have to do R&D and script that out. Rest of the whole podcast, like we just went with the flow. So I mean, that is how like we can get real answers, and that is how we can share transparent answers, unfiltered answers with the job seekers. Definitely, definitely. So once again, Rabia, thank you so much for your time. Thank you so much, Samir, for your time. It's really wonderful.